MQM کے قائد الطاف حسین نے اپنی تقریر کے دوران مختلف مواقع پر اپنے مخصوص انداز گفتگو سے حاضرین اور کارکنان کو خراج عقیدت پیش کیا. اپنی بیٹی افضا الطاف کو بھی کیمرے کے سامنے بلایا. MQM کے قائد الطاف حسین اپنی سالگرہ کے موقع پر خاص سے خوشگوار موڈ میں نظر آئے اور خطاب سے پہلے کارکنان اور حاضرین کو سلیوٹ کیا. الطاف حسین نے مختلف چینلوں سے آئے کیمرہ مین اور صحافیوں کو بھی انوکھے انداز سے سلام کیا. پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے جو کیمرہ مین کچھ تو کیمرے میں لگے ہوئے کیمرے کو پکڑ کے وہ ایسے ایسے موو کرتے ہیں, کچھ ادھر ہوتا ہے کیمرہ ان کے اور وہ آنکھیں ایسے 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 کبھی ادھر کبھی ادھر, اور جو رپورٹرز ہیں وہ سر جھکائے. الطاف حسین نے حاضرین کو نیوز روم میں کام کرنے والے ملازمین کے کام کے بارے میں بھی سمجھایا. جو ان کے اسٹیشنوں پہ جاتی ہے وہاں پروڈیوسر پورے جو عملہ ہے کارکنان, یہ لکھو یہ لکھو, یہ سلائڈ جلاؤ یہ سلائڈ جلاؤ یہ پٹی جلاؤ. پروڈیوسر کارکنان ہر اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ سب کو ایک ایک فرد کو السلام علیکم. خطاب سے پہلے الطاف حسین نے اپنی بیٹی افضا الطاف کو بھی بلایا اور اپنے چچا اور تایا حضرات کو سلام کرنے کا کہا. السلام علیکم بیٹا, آؤ آؤ بیٹا ادھر آ جاؤ ذرا. سب چچاؤں کو تایاؤں کو سب ادھر. MQM کا جس نے ایک بار پھر مقامی حکومتوں کے نظام اور نئے انتظامی یونٹس کی ضرورت پر زور دے دیا ہے. الطاف حسین نے سابق صدر پرویز مشرف کو رہا نہ کرنے پر 12 اکتوبر کے مارشل لاء میں ملوث تمام جرنیلوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کراچی میں کارکنان کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر مقامی حکومتوں کی اہمیت اور افادیت واضح کی, جمہوریت کی تعریف بتائی اور کہا کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر جمہوریت کو بدترین آمریت ممبر آف دا پارلیمنٹ جو ہے وہ سڑکوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا, وہ پلوں کی تعمیر نہیں کرتا. یہ سارے کام لوکل باڈیز کے ہوتے ہیں, لوکل کاؤنسلز کے ہوتے ہیں. میں ایسی جمہوریت کو آمریت سے بدتر قرار دیتا ہوں جو بغیر لوکل کاؤنسل سسٹم کے قائم ہو. الطاف حسین نے یاد دلایا کہ پارلیمان میں ہزارہ اور جنوبی پنجاب صوبوں کی قرارداد پیش کی گئی تو MQM نے بھرپور حمایت کی, جبکہ ان کے نئے انتظامی یونٹ بنانے کی تجویز کی مخالفت کی جا رہی ہے. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ پوری دنیا میں لوکل باڈیز سسٹم ہوتا ہے. بیٹے آپ تو باہر پڑھتے ہو, آپ تو لندن میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے, آپ کو نہیں پتا لوکل باڈی سسٹم کیا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اسٹیٹس اور پروونسز اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس پوری دنیا میں آبادی کے اضافے کے تناسب سے
इंतजामी यूनिट्स, नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाते हैं। छोटे मियाँ, आपको ये नहीं मालूम? अब वालिद मोहतरम साहब ने एक अच्छा तरीका निकाला है, जो बात कहने की खुद में हिम्मत नहीं होती, साहबजादे से कहलवा देते हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि कौम परस्त एक बार फिर फसाद फैलाना चाहते हैं। शुरू से कहता हूँ कि ये जो सिंधी कौम परस्त निकल के उर्दू बोलने वाले सिंधी और सिंधी बोलने वाले सिंधियों को लड़ाकर फिर दोबारा महाजिर सिंधी, महाजिर सिंधी, महाजिर सिंधी, मुझे लगता है कि ये कौम परस्त महाजिर नाम का सूबा बनवाने पे तुले बैठे हैं। अल्ताफ हुसैन ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की भी मुखालफत की और कहा कि अगर कार्रवाई करनी है तो 12 अक्टूबर 1999 से की जाए और परवेज मुशर्रफ का साथ देने वालों की भी गिरफ्त की जाए। ये चीफ जस्टिस को बहाल कराने वाली वकील अंजुमन, इंसानी हुकूक की अंजुमन ये एहतजाज करने क्यों नहीं आई कि सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ को क्यों 12 अक्टूबर 1999 को जिन फौजियों ने, जर्नलों ने मार्शल लगाया था, उन सबको आर्टिकल 6 के तहत गिरफ्तार किया जाए और जनरल जियाउल हक जहां कैद है वहां एक बस्ती आर्टिकल 6 वालों की कायम की जाए बशमूल जनरल कयामी। एमकेएम के कायद ने कालाबाग डैम पर सिंध के दानिशरों से बातचीत करने और बीच की राह निकालने की तजवीज दी, लेकिन साथ ही छोटे डैम बनाने का मुतालबा भी किया। सिंध के दानिशरों को, सिंध के एक्सपर्ट्स को, टेक्नोक्रेट्स को बुलाएं, उनकी राय लें, मशवरा लें, कोई बीच की राह निकाले कि सिंध का नुकसान भी ना हो और जो मुल्क की जरूरत है वो भी पूरी हो जाए। और जब तक ये मसला हल नहीं होता तो छोटे छोटे डैम्स बनाने के लिए तो कोई हथकड़ियां किसी ने नहीं डाली हुई ना हाथ में। अल्ताफ हुसैन का खिताब हैदराबाद, सक्खर और सियालकोट में भी सुना गया। इनके कायद अल्ताफ हुसैन ने पीपल्स पार्टी के छोटे मियाँ से मुखातिब होकर कहा है कि वो छोटे हैं, बड़ी बातें ना करें। उन्होंने अपनी तकरीर में बिलावल भुट्टो के ट्वीट का जवाब भी दिया। आज पीपल्स पार्टी के सरबराह छोटे मियाँ से कहता हूँ कि बेटे बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, अभी छोटे हो। अब वालिद मोहतरम साहब ने एक अच्छा तरीका निकाला है, जो बात कहने की खुद में हिम्मत नहीं होती, साहबजादे से कहलवा देते हैं। किसी ने मुझे बताया छोटे मियाँ ने ट्वीट कर दिया है, डसो मरसो मरसो सिन्ना डेसो, मरसो मरसो सिन्ना डेसो, सिन्ना डेसो, पूरा देसो, पूरा दे। बेटे अभी तो समझाया था छोटे बेटे कि बड़ों को लाओ यार, अब मैं अच्छा नहीं लगता बेटा, तुम बहुत छोटे हो अभी, अब्बू को लाओ, अब्बू को। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने एस्टेब्लिशमेंट से मदद की अपील कर दी है। उनका कहना है एस्टेब्लिशमेंट मदद करे तो एमक्यूएम हुकूमत में आ सकती है। अल्ताफ हुसैन ने भरना और परवेज मुशर्रफ को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने की अपील कर दी। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने अपनी 61वीं सालगिरह के मौके पर वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट सड़कों और पुलों की देखभाल नहीं करती, जमहूरियत खानदानों के जरिए सियासत करने का नाम नहीं, लोकल बॉडीज के बगैर जमहूरियत आर्मियत से बदतर है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी बाय द खानदान, ऑफ द खानदान, फॉर द खानदान। डेमोक्रेसी ये नहीं है, डेमोक्रेसी बाय द फ्यूडल, बाय द वडेरास, ऑफ द फ्यूडल, ऑफ द वडेरास, फॉर द वडेरास। अल्ताफ हुसैन ने सवाल किया कि पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट एमक्यूएम से क्यों नाराज है। इनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट मदद करे तो एमक्यूएम हुकूमत में आ सकती है। एमक्यूएम की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट मदद करे
तो आ सकती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट पता नहीं क्यों हमसे नाराज है। एमकेएम के कायद ने मुतालबा किया कि परवेज मुशर्रफ को गैर मशरूत तौर पर रहा करने का ऐलान किया जाए, वरना मुशर्रफ का साथ देने वाले तमाम जर्नैलों को आर्टिकल 6 के तहत गिरफ्तार किया जाए और जनरल कियानी पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत बंद कर दिया और आज तक वो मुकदमा भुगत रहा है, ये चीफ जस्टिस को बहाल कराने वाली वकला अंजुमन इंसानी हुकूक की अंजुमन ये एहतियात करने क्यों नहीं आई? नए सूबों के क्याम के हवाले से अल्ताफ हुसैन का कहना था कि लगता है कौम परस्त महाजिर नाम पर सूबा बनवाने पर तुले हुए हैं। इनका कहना था कि सराइकी और हजारा सूबे भी बनेंगे। एमकेएम के कायद का कहना था कि इमरान खान और ताहिरुल कादरी के बेशतर मुतालिबात जायज हैं, हुकूमत इनके मुतालिबात तस्लीम करे ताकि धरने खत्म किए जा सके। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि कालाबाग डैम पर सिंधी दानिशवरों से मुशावरत करके कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। उसमें छोटे छोटे डैम्स होंगे तो बिजली कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमकेएम के कायद ने नौजवानों को वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ उठ खड़े होने की तलकीन कर दी।